see associative multi-dimensional array, and in associative multi-dimensional array we will see a two-dimensional array first, and then we will see three-dimensional array also. So first of all we will see how to create associative two-dimensional array. So again it is very simple. अगर आप लोगों को इंडेक्स एरे का टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एसोसिएटिव एरे में आप लोग आसानी से टू डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखोगे सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे, तो यहाँ पर की है और की में एक एरो ऑपरेटर हमने लिया है इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ये सिंबल हमारा एरो ऑपरेटर है एरे के केस में, और यहाँ पर ये वैल्यू है। और जैसे कि मैंने बताया कि वैल्यू कोई भी टाइप की हो सकती है इंक्लूडिंग एरे। तो जब कोई की किसी और एरे को होल्ड कर रही है तो उस केस में ये आपका बन जाएगा एसोसिएटिव टू डायमेंशनल एरे। अब देखो ये एक की है और ये की एक एरे को होल्ड कर रही है। अब यहां पर जो एरे आएगा इट कैन बी इंडेक्स एरे ऑल्सो एंड इट कैन बी एसोसिएटिव एरे ऑल्सो। तो हम लोग ये मिक्स वाले एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग एक प्योर टू डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे हम लोग देखेंगे। अब टू डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे कैसे क्रिएट करना है, इस कोड को हम लोग लगा देते कमेंट। और लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज arr3.php। creating associative two-dimensional array। ओके, सो टू डायमेंशनल एरे हम लोगों को भी बनाना है। So we'll take a meaningful example. So we have faculties, okay? We have BCS, BCA, IT. These are the faculties. So we will take example of BCS, and every faculty has some classes like first year, second year, and third year. So I want to create array for it. Okay. So I will create an array variable BCS. Okay, and this will be the array. Okay, and this is the associative array. Okay, so inside this what I want to do, I want to store a total number of student present inside every class. Okay, so in BCS there is a first year. Okay, so there will be a key first year. Okay, we'll store students present inside every class. So there is a first year and this is the key. Okay. And here we have to represent value, and value will be array. Similarly in BCS there is a second year, so this will be my key, and value again there will be a array, and third will be, I'll take TY, let's keep it short, and its value will be also array. So here take a SY and here take a FY. Okay, so you please understand this example. We have created one associative array. It is a two-dimensional associative array, and name of this array is BCS. Inside this BCS, on first key we have stored one array, on second key we have stored other array, and on third key we have stored again other array. And as I said कि ये जो array है ये इंडेक्स एरे भी हो सकता है या फिर एसोसिएटिव एरे भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोगों को एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना है। तो एसोसिएटिव एरे आई विल क्रिएट something like this. We will just take a name of student. Okay, that is the key. So here I'll take a Dinesh, and I'll just take a contact number as a value.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the value, comma, second name of the student, that is key, and his contact number is value. Third student, again I will take key, it is Sandeep, and value. ओके, तो ये बन गया हमारा अभी एक फर्स्ट एरे यहाँ पर बनाया, जो कि कौन सी की होल्ड कर रही है, एफ वाई की होल्ड कर रही है, राइट। अब इसी एरे के अंदर हमारी जो सेकेंड की है दैट इज एस वाई के स्टूडेंट और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो लेट्स टेक इट जनरल, एफ वाई stud 1, fy stud 2, fy stud 3, and just for understanding purpose I am just modifying it. उसी तरीके से sy में हम लोग लेंगे sy stud 1, ये हो गई मेरी पहली की, और इस स्टूडेंट का यहां पर रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर, देन सेकेंड की sy stud 2 और इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर रहेगा, एंड जस्ट टेक ओनली टू कीज, टू वैल्यूज। वी हैव सीन इन द एग्जांपल ऑफ इंडेक्स एरे कि हम लोग हर इंडेक्स पर डिफरेंट साइज का एरे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से एसोसिएटिव एरे में भी हम लोग हर की के ऊपर एक डिफरेंट साइज का एरे हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। okay. So ty stud 1, this is the key, and value will be this, ty stud 2, and value will be 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Okay, so we have three keys in main array, and every key is holding one associative array. So in first key there is an associative array with three values, three key value pair. In second key again there is an associative array with two key value pair, and in third key there is an associative array with again two key value pair. Now we have to print this, and again to print this associative array you have two way. एक तो आप लोग प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज करो या फिर आप लोग फॉर ईच यूज करो। अब इसी को हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग फॉर ईच। सो एक्सेसिंग associative, accessing using for each loop. Okay, as we are seeing it is associative array, so accessing using for each loop. अब देखो for each loop इसका कैसे लिखा जाएगा। So you have to write for each, पहला एरे का नाम क्या है आप लोगों का, $BCS एज, और ये एसोसिएटिव एरे है तो यहां पर आने वाला वेरिएबल आप लोगों को इस सिंटैक्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, की वैल्यू पेयर में। तो यहां पर की हमारी क्या है, की हमारी है क्लास। ओके, वी कैन कॉल इट क्लास, और वैल्यू है स्टूडेंट्स। ओके, क्लास और स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप फुल नाम ले सकते हो, $क्लास एरो ऑपरेटर $स्टूड्स, इन शॉर्ट स्टूड्स। तो क्या होगा, ये बीसीएस के अंदर से हर एक की वैल्यू को रीड करेगा और प्रोसेस करेगा फर्दर। अब $क्लास एक स्ट्रिंग है और स्टूड्स एक एरे है, राइट। दिस इज द स्ट्रिंग एंड स्टूड्स दिस इज द एरे। अब इसको भी आप लोगों को अगर दोबारा से प्रोसेस करना है तो यहां पर आपको वापस लेना पड़ेगा फॉर ईच। लेफ्ट साइड में आपका रहेगा एरे दैट इज $स्टूड्स एज, और ये स्टूड्स एसोसिएटिव एरे है, इसीलिए एज के बाद आप लोग जो भी लिखोगे वो इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट का नाम है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप लोग इसको मीनिंगफुली लिख सकते हो, $name as
$yano. Okay, dollar name, not dollar name as, dollar name arrow operator $yano. ओके, अब डायरेक्टली आप लोगों को अगर नंबर प्रिंट करना है तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो इको $no. सो डायरेक्टली नंबर प्रिंट हो जाएगा, सारे के सारे नंबर इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर के प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर आप लोगों को नाम और नंबर ऐसे दोनों भी प्रिंट करने हैं तो नाम आप लोगों को किस में मिलेगा, डॉलर नेम के अंदर मिलेगा। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, लेट मी राइट इट इन H1, dollar name equals to dollar number, and this is closing of H1 semicolon. This you can see FY student, FY, then SY, and then 2TY student. इनके क्लासेस भी अगर आप लोगों को प्रिंट करने हैं, जैसे FY भी प्रिंट करना है, SY भी प्रिंट करना है, TY भी प्रिंट करना है, तो ये जो की है ये आपको कहां पे मिलेगी? It is here inside this dollar class, so that you can print echo class equals to dollar class, and this also we will print in H1. तो इसको हम लोग H1 में ले लेंगे और जो एक्चुअल डिटेल्स प्रिंट हो रहे हैं इनको हम लोग H3 के अंदर प्रिंट करेंगे। And let's check. So class FY, these are the students of FY. SY, these are the students of SY, and TY, these are the students of TY. So this is what associative two-dimensional array. Very easy to create and very easy to access using print_r as well as for each loop. So I hope you all have understood.